Good morning, everybody. Today I am with you a very new topic, or we can say very important topic for UGC Environmental Science NET examination point of view, and this topic is very important for CSIR NET examination also. That is Lotka-Volterra model. Lotka-Volterra model is very important, and every year one or two questions came from this topic in CSIR as well as in Environmental Science UGC Environmental Science NET examination. Hello friends, myself Dr. Rajni Shrivastava, working as Assistant Professor in Environmental Science and Environmental Technology Department, Rajiv Gandhi South Campus, Institute for Environment and Sustainable Development, Banaras Hindu University. So friend, this is very important topic, Lotka-Volterra model. Why Lotka-Volterra model? Because it provides us information about two species that living in the same ecosystem, or two species that sharing the same ecosystem. Lotka-Volterra model is composed of a pair of differential equation that describe predator-prey or herbivore plant or parasitoids host dynamics in their simplest case. So one predator population, one prey population. So Lotka-Volterra model is the simplest model. We can say predator-prey model where one predator is considered with one prey population is expressed in terms of equations. So this is called Lotka-Volterra model. Lotka-Volterra model was developed independently by Alfred Lotka in 1925 and Vito Volterra in 1926 in the 1920s, and it's characterized by oscillations in the population size of both predator and prey with the peak of predators oscillations. So what is predator? A predator is an organism that hunts, kills and eats other organisms to survive. Means the predator is the organism that always win. It has ability to kill and eat other organisms to survive. And what is prey? Prey is an organism which get hunted and taken as feed by other organisms. So in predator-prey model, predator is the organism that always win, and prey is the organism which get hunted and taken as feed by other organisms and taken as feed by predator organism. There are few assumptions that we must consider for formation of this model, or for simplification of this model. First thing is the prey population will grow exponentially when the predator is absent. Second thing, predator population will starve in the presence of a prey population as opposed to switching to another type of prey. So first thing is, पहला क्या है? The model makes several simplification. First thing is, the prey population will grow exponentially when the predator is absent. यानी कि prey का population, अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि crow और kite में, crow जो है वो predator है और kite जो है वो prey है, तो काइट की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती रहेगी इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर, दैट इज द क्रो. अगर किसी सिस्टम में क्रो नहीं है तो क्या होगा, जो काइट है उसकी पॉपुलेशन अनलिमिटेड ग्रो करती चली जाएगी. सेकंड एजम्पशन इज द प्रेडेटर पॉपुलेशन विल स्टार्व इन द एब्सेंस ऑफ प्रे पॉपुलेशन. और दूसरा इसका अपोजिट क्या है कि अगर उसका फूड यानी कि प्रे नहीं रहेगा, काइट नहीं रहेगा, तो प्रेडेटर पॉपुलेशन भी भूखे रहेगा और उसकी भी पॉपुलेशन इफेक्ट होगी एज अपोज टू स्विचिंग टू अनदर टाइप ऑफ प्रे, अगर वो दूसरे तरह के प्रे पे नहीं स्विच ऑन करता है तो. ठीक है, तो पहली चीज है कि अगर कोई क्रो है और इसकी डिपेंडेंसी इस काइट पे है, सो क्रो इज द प्रेडेटर एंड काइट इज द प्रे. सो अगर इसकी ये एब्सेंट हो जाता है, क्रो एब्सेंट हो जाता है, तो काइट की पॉपुलेशन यानी कि प्रे की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी. दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जम्पशन हमें ये मॉडल में ये मानना होता है कि प्रेडेटर पॉपुलेशन विल स्टार्व इन प्रेजेंस ऑफ प्रे पॉपुलेशन. कि अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन, अगर ये प्रे न रहे तो फिर क्या होगा, ये प्रेडेटर पॉपुलेशन अनलिमिटेड ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी इस पे है. तो जब तक कि ये दूसरे प्रे पे नहीं स्विच ओवर करता है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि इसका जो फूड है, इसका फूड ये प्रे है, तो इसका फूड डिक्रीज हो रहा है.
थर्ड एजम्पशन इज प्रेडेटर कैन कंज्यूम इंडेफिनिट क्वांटिटीज ऑफ प्रे, यानी कि तीसरा एजम्पशन हमने ये मानना है कि प्रेडेटर चाहे जितने भी प्रे हो, 2 प्रे हो तो भी इसको पूरा कंज्यूम कर जाएगा, और अगर यहाँ पे 100 प्रे हैं तो भी इनको ये पूरा कंज्यूम कर जाएगा, यानी कि जो प्रेडेटर है इसके पास जितने भी क्वांटिटी है उन सबको कंज्यूम करने की कैपेसिटी है। तो तीसरा एजम्पशन ये है। चौथा है देयर इज नो एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी, इन अदर वर्ड बोथ पॉपुलेशंस आर मूविंग रैंडमली थ्रू अ होमोजेनस एनवायरमेंट एजम्पशन, यानी कि ये है कि इस प्रेडेटर और प्रे के अलावा दूसरे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर इसमें नहीं किया जा रहा है, कि मान लीजिए प्रे की पॉपुलेशन सेम है लेकिन और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर एडवर्स हैं जिसके कारण कि ये इसको फूड नहीं ले पा रहा है, तो वो फैक्टर को हमने कांस्टेंट माना है, एनवायरमेंटल फैक्टर को हमने कांस्टेंट माना है। तो ये 4 एजम्पशंस जो है ये हम लोग मानते हैं जब भी मॉडल बनाते हैं लोटका-वोल्टरा मॉडल। So this model we suppose there are 2 species. If in an ecosystem there are 2 species, one species that is predator may be the crow and second species may be the kite. So as we know, species do not exist in isolation. The simple model of exponential or logistic growth failed to capture the fact that species can compete for resources. जैसे कि कोई भी अगर हम लॉजिस्टिक मॉडल लेते हैं या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ये मानते हैं कि अगर ये स्पीसीज है तो उसका वो फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल मॉडल कर्व या लॉजिस्टिक मॉडल कर्व, लेकिन कोई भी एनवायरनमेंट में स्पीसीज आइसोलेशन में नहीं रहती है, हमेशा 2 स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है। दे में कॉम्पीट फॉर रिसोर्सेज, दे में असिस्ट वन अनदर within the system, they may exclude one species may exclude another species, one species may kill another species. So Lotka-Volterra model or equations are simple model of the population dynamics of species complexity for same common resources. जैसे environment में कोई भी species isolation में नहीं है, तो लोटका-वोल्टेरा मॉडल ये बताता है कि 2 स्पीसीज जब जो कि कंपटीशन में है उनके बीच का क्या पॉपुलेशन डायनामिक्स है, उनके बीच क्या पॉपुलेशन डायनामिक्स है। जैसे पहला इक्वेशन होता है, अगर हम किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल उसका फॉर्मूला है dn/dt = rn, उससे एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि जो rn का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। दिस r इज फॉर द r इज कांस्टेंट एंड दिस इज फॉर इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, यानी कि दिस डिपेंड ऑन दी mortality as well as natality of the species, and is the actual number of species present in the ecosystem. dn/dt is equal to increase in number of that individual within this particular time. So this is the equation for exponential growth model. But more realistic is the logistic growth model that expressed by the introduction of K, that is the carrying capacity, क्योंकि हमेशा एनवायरनमेंट में एक कांस्टेंट होता है, एक हर एनवायरनमेंट की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो इस कैरिंग कैपेसिटी को इंट्रोड्यूस करके ही हम मोर रियलिस्टिक इक्वेशन के थ्रू पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी चीज के। तो हम ये दूसरा इक्वेशन जिसको कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहते हैं, dn/dt = rn, अब इसमें हम एक k फैक्टर लगा देंगे, k - n/k, तब ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को एक्सप्रेस करेगा। सो दीज 2 आर इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर मे बी स्पीसीज 1 और फॉर स्पीसीज 2, ठीक है, बट लोटका-वोल्टेरा मॉडल टेल अस इक्वेशन फॉर 2 स्पीसीज दैट शेयरिंग द सेम रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्पीसीज आइसोलेशन में नहीं है, 2 स्पीसीज एक साथ है, तो लोटका-वोल्टेरा मॉडल जो है वो प्रेडिक्ट करता है या ये बताता है कि अगर 2 स्पीसीज एक साथ है और कंपटीशन है रिसोर्सेज का उनके बीच में, तो वो किस तरह से उनकी पॉपुलेशन प्रेडिक्ट की जा सकती है। दिस इज द मॉडल फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दिस इज फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल से इन एब्सेंस ऑफ कैरिंग कैपेसिटी देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि इक्वेशन 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है
और इक्वेशन 2 जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन आफ्टर सम टाइम गोइंग टू बी कांस्टेंट. So now come on the Lotka-Volterra model. Lotka-Volterra model, in this model we are considering two species. Species 1, it may be predator or any one species like the crow, and second is the second species is a kite. So we consider two species in Lotka-Volterra model. So जब भी इकोसिस्टम में कोई दो स्पीसीज रहेगी तो वो दोनों स्पीसीज एक दूसरे से रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करेगी या वो क्या करेगी, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज करेगी, यानी कि पार्टीशनिंग ऑफ रिसोर्सेज अकर. सो या तो क्या करेगी, स्पीसीज 1 दूसरे स्पीसीज को पूरा सिस्टम से हटा देगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, या पार्टीशनिंग ऑफ रिसोर्सेज होगा. ठीक है, तो जब स्पीसीज एक स्पीसीज बी से इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालेगी, एक दूसरे के पॉपुलेशन पे इफेक्ट डालेगी. तो जब स्पीसीज एक जो है वन स्पीसीज सेकेंड स्पीसीज से इंटरेक्ट करती है तो अल्फा 2-1 फैक्टर काम करता है, यानी कि जो 2-1 का मतलब इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2-1 ऑन 2. ठीक है, स्पीसीज एक का स्पीसीज 2 पे इफेक्ट, तो वो इसके पॉपुलेशन को डिसाइड करेगी. ये एरो इधर साइड में होगा, ये यहाँ नहीं होगा. स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन जो है वो 2 को इफेक्ट करेगी. सेम वे अल्फा 1-2 यानी कि स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन जो है वो स्पीसीज 1 को इफेक्ट करेगी. So if we wish to know the population of species 2 kite, we must count the species 1, that is the crow. Okay, so अगर हमको species 2 का population को consider करना है तो हमें species 1 का population यानी कि crow को भी consider करना पड़ेगा. Same way अगर हमें species crow का population को count करना है तो हमें kite के भी population को count करना पड़ेगा. So in the competition one species will win, यानी कि predator हमेशा जीत जाएगा, and the other species will lose, यानी कि जो prey species है वो lose कर जाएगा. तो one will predator and one will prey, one will act as prey. So species A का population क्या होगा? In presence of species 2, what will be the population of species 1? So we can do this by, जैसे हमने जो दूसरा लॉजिस्टिक मॉडल पढ़ा था वो क्या था हमारा, dn अपॉन dt इज इक्वल टू क्या था, r n, और फिर उसके बाद से कैरिंग कैपेसिटी लगा था k माइनस n. कैरिंग कैपेसिटी क्या था, k माइनस n डिवाइडेड बाय k माइनस n डिवाइडेड बाय k था हमारा. सो इसी फॉर्मूले को अगर हम देखें तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू n1 के स्पीसीज के लिए, स्पीसीज 1 के लिए हम n1 यूज करते हैं तो r n1 हो जाएगा k माइनस n1, क्योंकि n1 की स्पीसीज है, और दूसरा फैक्टर इसके साथ लग जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दूसरा फैक्टर इसके साथ लग जाएगा अल्फा 1-2, ये लग जाएगा स्पीसीज का पॉपुलेशन, यानी कि टू पॉपुलेशन का पॉपुलेशन 2 का इफेक्ट पॉपुलेशन 1 पे इनटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट ऑफ स्पीसीज 2, दैट इज n2 डिवाइडेड बाय k. So this logistic model or this equation can be modified like this for species 1. ठीक है, species 1 की population को अगर हमें predict करना होगा in presence of competitive species 2 तो क्या करना होगा, उसी सेम फॉर्मूले को हमको इस तरह से मॉडिफाई कर देना होगा, dn अपॉन dt, r n1 इज द इंडिविजुअल ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, फिर ब्रैकेट में कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस फर्स्ट स्पीसीज माइनस n1 इंडिविजुअल ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, एंड देन माइनस अल्फा 1-2. अल्फा 1-2 का मतलब क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1 इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल n2 डिवाइडेड बाय k. Same way we can predict the population of species 2. Here what can we do, same equation, that is the logistic curve equation, dn upon dt can be written like this, dn upon dt is equal to r n2 is the
number of species of second species, total number of individual of second species, and k is the carrying capacity minus n2 total number of second species minus alpha 21 means impact of species 2 on species 1 on 2 into n1 यानी कि individual of first species divided by k. So this two species by this two equation we can either calculate the growth rate of either species 1 or the growth rate of either species 2. तो हम इसे या तो species 1 का predict कर सकते हैं या species 2 का predict कर सकते हैं. So the question is, can we predict in the competition of two species who will win और लूज? यानी कि क्या हम इस इक्वेशन से या लोटका-वोल्ट्रा मॉडल से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन स्पीसीज जीतेगा या कौन स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा और किस स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा? यस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डू this equation. We can do this is the graph by which we can predict this. This is the this line is called isocline line. Isocline line we consider 0 here, okay, and means the effect of environment is 0 on species 1 and species 2. So this is the isocline line. This K2 represent the carrying capacity of species N2. Okay, so species N1 is on the x-axis. We have plotted species 1 and the x-axis, and species y is species 2 on the y-axis. यहाँ पे हमने x-axis पे species 1 को N1 यानी कि total number of individual of first species, N2 means total number of individual of the second species को हमने plot किया है. K2 represent करता है हमारा carrying capacity. ठीक है, तो जैसे जैसे कैरिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय N2 एंड K2 अपॉन A2. K2 यानी कि कैरिंग कैपेसिटी इसका अपॉन दूसरे इंडिविजुअल का स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पे कितना इफेक्ट पड़ा है, ये कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा हमारा N1 का. There are four graphs that represent the situation of competitive model. This graph represent the that species 2 will win. यानी कि species A को हमने दिखाया है ग्राफ ये रेड वाले पेन से और species 2 को दिखाया है हमने ब्लू वाले पेन से. So अगर ये लाइन ऊपर है, ठीक है, यानी कि स्पीसीज लाइन ऊपर है, तो ये अगर यहाँ जाकर के काट रही है इसका मतलब होता है ये this line show increase of population of x-axis on y-axis, this line show increase of population on x-axis, and resultant of this ये जहां पर भी गिरेगा वो बताता है कि कितना स्पीसीज का पॉपुलेशन है. तो इस केस में देखिए ये ब्लू लाइन क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ब्लू लाइन स्पीसीज 2 को रिप्रेजेंट कर रही है. तो यहाँ पर आप ऊपर लाइन है तो स्पीसीज 2 विन करेगा और स्पीसीज 1 जो है उसका लॉस होगा. यहाँ पर सेम अपोजिट है, यहाँ पे क्या होगा? रेड लाइन ऊपर है तो स्पीसीज 1 विन करेगा और स्पीसीज 2 जो है वो लॉस करेगा. हमेशा एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया N1 यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, और वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेकेंड स्पीसीज. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या इंटरसेप्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अनस्टेबल कोएक्सिस्टेंस डिपेंड ऑन द इनिशियल नंबर 1 एंड नंबर 2. यानी कि ये दोनों स्पीसीज उस इकोसिस्टम में या उस एनवायरनमेंट में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं और ये कोएग्जिस्टेंस डिपेंड करता है कि उनका इनिशियल N1 का यानी कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है स्पीसीज 1 का और नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज 2 के कितने हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका स्टेबल कोएग्जिस्टेंस है इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2. आइए इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन आया है 2017 में कि किस तरह से लोटका-वोल्ट्रा मॉडल के ऊपर. इन कॉलम 1 आर गिवन इक्वेशन एंड इन कॉलम 2 व्हाट इक्वेशन रिप्रेजेंट. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर इनकरेक्टली मैच. ठीक है, तो अब इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा जो है रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन किसको. dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn r1 n1 k1 माइनस n1 अपॉन k1. यानी कि
जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट इंडिविजुअल का स्पीसीज है उसका प्रेडेटर प्रे मॉडल यानी कि लोटका वोल्ट्रा मॉडल की इक्वेशन के हिसाब से क्या इक्वेशन होना चाहिए, N1 यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट इंडिविजुअल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट इंडिविजुअल अपॉन ये। तो ये हमारा सिंपल जो है वो क्या है, हमारा जो लॉजिस्टिक इक्वेशन है वही है dN अपॉन dt इज इक्वल टू, जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी लगा देते हैं तो वो है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा हो जाएगा लॉजिस्टिक इक्वेशन, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 1। सेकेंड है dN अपॉन dt इज इक्वल टू Rn, dN अपॉन dt इज इक्वल टू Rn स्पीसीज बताता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। दूसरा है dN अपॉन dt इज इक्वल टू R1 N1 K1 माइनस N1 अल्फा N2 यानी कि अल्फा यानी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 on species 1 and individual number 2, individual of species 2 and K1. This represent the population growth of species 1 in presence of competing species 2. And there are second option is population growth of prey species in the presence of predator species 2. So by this equation we cannot predict ki which species is predator and which one will be prey. So this is simply the equation for competition between two species, species 1 यानी कि N1 और N2 के बीच का कंपटीशन बता रहा है। इस इक्वेशन से हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा स्पीसीज प्रे है और कौन सा प्रेडेटर है। सो ऑफ कोर्स द आंसर विल फर्स्ट। एंड फोर्थ वन इज dN अपॉन dt इज इक्वल टू N1 B1 माइनस D1 अपॉन ये, तो ये हो जाएगा आपका ये इक्वेशन। सो फर्स्ट का सेकेंड एंड सॉरी ये फर्स्ट का सेकेंड, डी का फोर्थ, सी का 1 एंड ये, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देती हूँ कि इसको आप लोग करिए, लोटका वोल्ट्रा 2 इक्वेशन कंपटीशन मॉडल इसको, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आया है CSIR और नेट एग्जामिनेशन में, UGC नेट एग्जामिनेशन में, कि टू स्पीसीज M and N ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट। M और N टू स्पीसीज है, एक ही हैबिटेट को में रह रहे हैं। गिवन बिलो स्टेट स्पेस ग्राफ इन विच द एबंडेंस ऑफ स्पीसीज M इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि M स्पीसीज को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है और N स्पीसीज को Y एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। एंड द जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन इज प्लॉटेड। जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर इस पे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अभी पीछे ग्राफ से हमने देखा कि जो लाइन ऊपर है यानी कि जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा दूरी पे कट रहा है उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल और उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला स्पीसीज है ये ज्यादा दूरी पे कट रहा है, M नंबर का स्पीसीज, तो ये हमेशा विन करेगा और यहाँ पे ये नीचे करेगा। एक और चीज है यहाँ पे कि जो स्पीसीज का नंबर इस लाइन के नीचे रहता है वो इंक्रीज करता है, यानी कि अगर इंटरसेप्ट लाइन के नीचे अगर कोई स्पीसीज का पॉपुलेशन दिया है तो वो स्पीसीज हमेशा इंक्रीज करेगी, अगर इंटरसेप्ट नंबर के ऊपर वो लाइन स्पीसीज नंबर दिया है तो वो स्पीसीज हमेशा डिक्रीज करेगी। सो एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ स्पीसीज M and N इंक्रीजेस। पॉपुलेशन एट पॉइंट ए पे जो है वो M की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है और N की पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो A पॉइंट है वो इस वाले लाइन के भी अंदर है और इस वाले इंटरसेप्ट लाइन के भी अंदर है। तो जैसे हमने कहा कि अगर इंटरसेप्ट लाइन के अंदर कोई पॉइंट है तो स्पीसीज नंबर इंक्रीज करेगा। तो ये A पॉइंट क्या है, ये M के लाइन के भी अंदर है और N पॉपुलेशन के भी अंदर है, तो ये दोनों की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज M इंक्रीजेस। पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज M इंक्रीजेस एंड वाइल द स्पीसीज N डिक्रीजेस। ये देखिए ये M के नीचे पॉइंट है तो स्पीसीज का डिक्रीज करेगा, लेकिन N के ऊपर पॉइंट है तो ये स्पीसीज डिक्रीज करेगा। यानी कि ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, जो बी पॉइंट है वो इस M के नीचे आ रहा है तो स्पीसीज पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, और ये बी पॉइंट जो है वो N स्पीसीज के ऊपर आ रहा है यानी डिक्रीज करेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है एट पॉइंट बी
पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एन इंक्रीजेस, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एन इंक्रीजेस गलत है, क्योंकि इस पॉइंट एन जो है इसके ऊपर है, तो पॉपुलेशन ऑफ एन डिक्रीज करेगा, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। अल्टीमेटली स्पीसीज एन विल बी एलिमिनेट, ऑफ कोर्स, क्योंकि एम जो है वो डोमिनेट स्पीसीज है, डोमिनेटिंग स्पीसीज है, इसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल देखिए ज्यादा है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे इसकी ज्यादा है, तो यानी कि कैरिंग कैपेसिटी यानी यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ के कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा, ये जीतेगा, तो m जो है वो जीत जाएगा, तो अगर m जीत जाएगा तो n जो है वो सिस्टम से एलिमिनेट हो जाएगा, तो यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। सो ये लोटका मोल्ड्रा मॉडल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो कि यूजीसी और CSIR नेट में आए थे, वो थे क्वेश्चन। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल and give your feedback on comment section. Thank you so much.